Hello guys, so I am back with another video of environmental biology. In this video, I will be covering different aspects of environmental biology like food chain, food web and food chain in detail. The types of food chain, that is the grazing food chain and the detritus food chain with their examples. Then we will be covering different biotic interactions like parasitism, commensalism, amensalism, predation, etc. So stay tuned with me with the trailblazing team. Let's get started. So the very first thing is food chain. फूड चेन का मतलब क्या होता है? सी, फूड चेन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम one trophic level to another trophic level, right? Transfer of food energy from one trophic level to another trophic level, right? So first trophic level, like let's say green plants, the producers, then through a series of organisms with repeated eating and being eaten. This is called as food chain. Here I have given you the example of food chain, like for example grasses, right? Grasses, the autotrophs, they are being eaten by grasshoppers, right? Then grasshoppers are being eaten by frog, frog is being eaten by snake, snake is being eaten by hawk or eagle, right? So this is a series of organisms with repeated eating and being eaten. So this is called as food chain. Now you know that I have already discussed in my previous video. अगर आपने वो नहीं देखी है तो please go back and watch that particular video, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा because उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था about the different types of trophic levels in detail, और trophic level होता क्या है और different first trophic level, second trophic level, third trophic level क्या होता है. तो आप प्लीज वापस जाइए और उसको देखिए. नाउ ईच स्टेप इन द फूड चेन, हर एक स्टेप को फूड चेन में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, राइट? फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स and ends with the top carnivores, right? Here, like as this one you can see, it is starting with the producer. Producers are the autotrophs. Autotrophs are what? Those who can prepare their own food. The trophic level of an organism, again मैं आपको ये दोबारा से यहाँ पे बता रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन द फूड चेन. ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है? क्या पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है एक ऑर्गेनिज्म में अपने फूड चेन में. नाउ यू नो देयर आर types of food chain. So one is the grazing food chain, another one is the detritus food chain, and there is third one also, that is parasitic food chain, right? So this is parasitic food chain. एक और होती है थर्ड वन, parasitic food chain. तो grazing food chain और detritus food chain मैं आपको बताऊंगी, और parasitic food chain you will tell me in the comment section, okay? And I'll definitely wait for your answers. Okay, so let's talk about these food chain in detail. Okay, so the very first one is the grazing food chain. Grazing food chain का मतलब क्या होता है? Grazing food chain is the type of food chain, which basically starts from the green plants. Okay, that basically starts from the green plants. तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, grazing food chain वो food chain होती है जो start होती है किससे start होती है? With the green plants. The consumers which starts the food chain utilizing the plant, okay, utilizing the plant or plant part as their food constitutes the grazing food chain. तो ये जनरली ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं किसको? ग्रीन प्लांट को. ओके, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, सो ग्रास इज ईटन बाय कैटरपिलर. तो ग्रास क्या है यहाँ पे? क्या है ग्रास? यहाँ पे ग्रीन प्लांट है. सो जब भी ग्रेजिंग फूड चेन आएगा तो वो हमेशा ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होगा. तो इट इज स्टार्टिंग विद द ग्रीन प्लांट, द ग्रास, which is eaten by the caterpillar, which is eaten by the lizard, and which is eaten by the snake. So this is how the food chain continues, right? Now if I talk about the aquatic ecosystem, again phytoplanktons. Phytoplanktons का मतलब क्या होता है? Phyto means plant and plankton means these are the primary producers, phytoplanktons, right? These are eaten by the zooplanktons, which are eaten by the fishes, and which are eaten by the fishes are then eaten by the pelicans. ठीक है, तो इसमें
आपको समझना होगा कि एक्वाटिक फूड चेन भी कहां से स्टार्ट हो रही है, बेसिकली कहां से स्टार्ट हो रही है एक्वाटिक फूड चेन? It is also starting with the primary producers, with the producers only. So any kind of food chain which is starting with the green plants or the producers is called as the grazing food chain. जब भी आपको इस टाइप के words मिले like phytoplankton, zooplankton, तो break these words and try to find out the meaning. अब अगर मैं phytoplankton को break करूंगी तो phyto का मतलब होता है plant, right? And plankton का मतलब क्या होता है? Basically जो float करते हैं पानी के ऊपर, राइट? माइक्रोस्कोप मतलब बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हो गया जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, राइट? प्लैंक्टन्स. सिमिलरली आर द zooplankton. Zooplankton are also the one which is the animals which float on water. Okay, so this is about the grazing food chain. So this is the example, this is through diagram that you can see here. In the case of the grazing food chain, producer से start हो रहा है, it is eaten by the primary consumer, which is being eaten by the secondary consumer, which is being eaten by the tertiary consumer, and then all these are eaten by the decomposers. Okay, so this one is the grazing food chain. Now other one is the detritus food chain. Grazing और detritus food chain में difference है. Grazing हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर मैं डेट्राइटिस फूड चेन की बात करूं तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, राइट? सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज. ओके, फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन. इनको क्या बोलते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स. ठीक है, सो डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटिस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स. नाउ दीज डेट्रीवोर्स आर ईटन बाय द प्रेडेटर्स. ओके, अब इसमें भी एग्जांपल दिया है, एक है एक्वाटिक फूड चेन का, aquatic ecosystem, and other one is of the terrestrial ecosystem. Now, if I talk about the aquatic ecosystem, the grazing food chain is the major conduit for energy flow. Aquatic ecosystem में major energy flow takes place from the grazing food chain. ठीक है, phytoplankton से start होती है. Then there are zooplanktons, and this is how the energy flow takes place. Now, if I talk about the terrestrial ecosystem, much larger fraction of the energy flow यहाँ पे through the detritus food chain than through the grazing food chain. Now, you know these 2 points are very important as far as your नेट एग्जाम इज कंसर्न. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस के फॉर्म में दिया है. ग्रेजिंग फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, डेट्राइटस कहां से स्टार्ट होती है. एनर्जी फ्लो का मेजर कंड्यूट कहां किसमें होता है? एक्वाटिक फूड चेन में. ग्रेजिंग इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन होता है. ठीक है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कंड्यूट इन द सेंस लाइक मेजर पोर्शन और मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो कहां किस चीज से होती है. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो कैसे होती है? डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू. और एक्वाटिक में किससे होती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल डेड लीव्स. मैंने बताया आपको डेट्राइटस फूड चेन हमेशा जो आपका डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है वहीं से शुरू होगा. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही शुरू होगा, राइट? सो ये डेड लीव्स से शुरू हो रहा है. देन वुड लाउज विल ईट दैट. नाउ देन दिस विल बी ईटन बाय दिस ब्लैक बर्ड. Okay, so this is an example of detritus food chain. Now another thing is the food web. जब बहुत सारी, अगर मैं एक लेमन टर्म से बात करूं तो बहुत सारी फूड चेन मिला के एक फूड वेब बनाती हैं, राइट? सो इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन मेक्स अ फूड वेब. इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल पार्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो. सारे पॉसिबल पार्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो मिलते हैं in an ecosystem. If any of the intermediate food chain is removed, the succeeding links of the chain will be affected largely, right? अगर आपने कोई भी एक फूड चेन रिमूव कर दी फूड वेब से, ठीक है, एक तरह का मेश तैयार होता है ना जो फूड चेन्स की वजह से, वो होता है फूड वेब. ठीक है, तो अगर आपने उसमें से कोई भी एक फूड चेन निकाल दी तो उसके जो दूसरी फूड चेन है उसी के जैसी जो दूसरी फूड चेन है वो टेक पार्ट करेगी एंड बाकी सारी फूड चेन्स जो होंगी दे विल गेट अफेक्टेड, राइट? नाउ फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम and therefore increases their chances of survival. You like for example, terrestrial ecosystem में कोई भी एक organism है वो हट गया है या extinct हो गया है, right? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा
कि बाकी जो फूड चेन में बाकी ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन व्हाट विल हैपन, जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है फूड का वो टेक पार्ट कर लेगा वहां पे। ठीक है, सो फूड वेब में क्योंकि मैश तैयार होता है, बहुत सारी फूड चेन्स मिला के फूड वेब बनती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फूड वेब. It is basically a network interconnected food chain which exists in the ecosystem. And you know that food webs are more realistic models of energy flow through an ecosystem. And we know that we have already seen that flow of energy in an ecosystem is always linear. Nutrients can flow in all the directions, but flow of energy in the ecosystem is always energy in the ecosystem is always, or in the in the food chain is always linear. Okay, let's talk about the type of biotic interactions in a food chain. कितने types के होते हैं, there are different types of biotic interactions in the food chain, like mutualism, like competition, like predation, parasitism, amensalism. बहुत different types के होते हैं. तो अब मैं आज आपको इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी. So the first one is, which is the first one? Tell me, mutualism. ठीक है, mutualism is the first one. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअलिज्म इन डिटेल. बेसिकली इसमें क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में एसोसिएशन है. ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है जिसका पेयर्स ऑफ स्पीशीज का दैट ब्रिंग्स म्यूचुअल बेनिफिट, जो म्यूचुअली आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. लाइक लाइकन्स इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल. वी नो व्हाट इज लाइकन. लाइकन क्या होता है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लाइकन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइकन? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज लाइकन. Lichen is basically, okay, you will tell me, I will wait for your answers. Mutualism अगर मैं बात करूं तो ये basically इसको symbiosis भी बोलते हैं. It is also called as symbiosis, symbiosis. Symbiosis associations आपने सुने होंगे, lichens का, mycorrhiza का. Then there is also one more example, that is termites and trichonympha. ठीक है, तो इसमें क्या होता है म्यूचुअलिज्म में, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट. यानी कि what happens in this is interactions is a positive positive. इसका मतलब है दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप. ओके, मतलब इसमें ये होता है कि it can never happen that no one of the partners of the mutualism can survive individually. ओके, कोई भी एक पार्टनर इंडिविजुअली सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा. चलो मैं ही बता देती हूँ आपको. लाइकन्स बेसिकली एसोसिएशन होता है किसका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गा और फंजाई का. तो एल्गा और फंजाई, तो फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इन टर्म्स एल्गा क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंजाई को. एल्गा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा. तो एल्गा और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया. राइट नाउ वी नो दैट another one is mycorrhiza. ये क्या होता है, symbiotic association होता है between the fungi and roots of some trees. तो fungi क्या करेगा, help करेगा absorption of water and minerals by the plant, right? And plant in terms provide different food components to the fungi. ठीक है, plant उसको provide करेगा food components. ठीक है, so these are some of the examples. Then seed dispersal by animals, ये सब भी एग्जाम्पल है. टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा है. टर्माइट्स फीड करता है वुड के ऊपर, यू नो दैट, बट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता सेल्यूलोज जो भी वुड में प्रेजेंट होता है. तो ट्राइकोनिम्फा क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोजोन विच लिव इन द गट्स ऑफ द टर्माइट्स, जो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और फिर हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में सेल्यूलोज ऑफ द वुड. And one more example is I told you the flowering plants and their insect pollinators. तो flowering plants को भी इससे हेल्प होता है. ठीक है, उनके लिए pollination हो जाता है और insects को उससे हेल्प होता है क्या, उनको नेक्टर मिल जाता है. So this is the example, these are the examples of mutualism. Another one is commensalism. अगर मैं commensalism की बात करूं तो it benefits one organism and another organism is neither benefited and nor harmed. तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव एंड जीरो इंटरेक्शन. ठीक है, तो एक को बेनिफिट होता है पॉजिटिव और एक को ना तो बेनिफिट होता ना ही उसको हार्म होता. ठीक है, तो occurs when one organism take benefits by interacting with another organisms by which the host organism is not affected. ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, रेमोरा लिविंग विद अ शार्क. रेमोरा बेसिकली सकर फिशर्स होती हैं, सकर फिशेस, सॉरी नॉट फिशर्स, फिशेस, सकर फिशेस. ठीक है, तो रेमोरास क्या करती हैं, शार्क के आसपास होती हैं. ठीक है, तो रेमोरास क्या करती हैं, जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है ना शार्क का, उसको खा लेती हैं. तो
इससे क्या हो रहा है, रेमोराज को बेनिफिट हो रहा है, राइट, और शार्क को क्या हो रहा है, ना तो बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा. तो दिस इज द थिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज क्लाइंबर्स और लाइनर्स. यू नो, जैसे कि बहोइनिया होता है या टीनोस्पोरा होता है विच आर रूटेड इन द सॉइल. तो वो क्या करते हैं क्लाइंबर्स, वो लार्ज ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर देते हैं. ठीक है, तो उन क्लाइंबर्स को क्या 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 सपोर्ट मिल रहा है, उनको सनलाइट मिल रही है. ठीक है, सपोर्टिंग प्लांट्स के पास ना तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और ना ही उसको हार्म हो रहा है. ठीक है, वन ऑफ द अदर एग्जांपल इज एपीफाइट्स. एपीफाइट्स क्या होते हैं, अगेन एपीफाइट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स. तो व्हाट दे डू इज, अगेन वो दूसरे प्लांट को यूज करते हैं नॉट ओनली एज अ सपोर्ट. ठीक है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, ना कि फूड वाटर के लिए. सो they are another example. One of the example of epiphytes is orchids. तो आपको सिंपल सा इसका एक इंटरेक्शन याद रखना है, पॉजिटिव और जीरो, एक को बेनिफिट और एक को ना तो बेनिफिट ना ही हार्म. अनदर वन इज पैरासिटिज्म. यू नो व्हाट इज पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म तो पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन होता है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को हार्म हो रहा है. तो जो होस्ट है उसको हार्म हो रहा है और जो पैरासाइट उसके अंदर रह रहा है दैट इज गेटिंग बेनिफिटेड. तो इट इज अ नेगेटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन. ठीक है, it is a negative kind of interaction. Okay, you know the examples also. The example is Cuscuta. Cuscuta क्या है, ये total stem parasite है which live on the surface of other large plants because you know Cuscuta are devoid of chloroplast and they cannot prepare their own food. तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हॉस्टोरिया बोलते हैं. ठीक है, तो हॉस्टोरिया इंसर्ट करेगा फ्लोएम टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट में और एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है. ठीक है, अनदर एग्जांपल इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी नो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई. ठीक है, अब देखो वायरस, वन वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ वायरस इज नाउअडेज कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस इज अ काइंड ऑफ अ वायरस. ये पैरासिटिज्म रिलेशनशिप है, पॉजिटिव और नेगेटिव. हमें बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है और बैक्टीरिया को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है. Understood? So this is again another example. One more example is Santalum, album and Thesium. They are partial root parasites. Their roots are attached to the host plants. Again, they will be benefited and other will be harmed. So these are the common examples of parasitism. Predation क्या है, अगेन ये भी एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, ये भी एक नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है. तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से आ सकता है, म्यूचुअलिज्म एक पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, प्रिडेशन एक नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है. ठीक है, सो ये पॉजिटिव नेगेटिव. प्रिडेटर प्रे का रिलेशनशिप आपने सुना होगा. प्रिडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म, लाइक द कॉमन एग्जांपल इज लायन, जेब्रा. ठीक है, बेयर. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रे. ठीक है, सॉरी प्रेडेटर, प्रेडेटर का एग्जांपल है ये. और गोट हो गया, ठीक है, फॉक्स हो गया, रैबिट हो गया, दे आर एक्टिंग एज अ प्रे फॉर लायन एंड बेयर. ओके, सो दीज आर प्रे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप. ठीक है, so you know predation is very important in community dynamics and it helps to maintain the constancy of number of different trophic levels in the ecosystem. So this is about predation prey relationship. Another one is competition. Competition again एक नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है. अगर मैं बात करती हूँ कंपटीशन की, तो ये भी एक नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इन विच द फिटनेस ऑफ वन इज लोवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर. हमने एक पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देखिए, उसमें हमने पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट गॉसियन प्रिंसिपल, गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अगर कोई भी एक दो स्पीशीज if they are sharing a same habitat, तो and they are competing for the same resources, so one of the species will get extinct. Okay, so competition is often for a resource such as food, water, territory, or access to females for reproduction. Competition among the members of the same species, we know, कल भी हमने पढ़ा था इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक के बारे में. आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो बैक इन द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच इट केयरफुली एंड ऑल्सो टेल मी द एग्जांपल्स हियर कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के क्या एग्जांपल हो सकते हैं और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के क्या एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है, तो कंपटीशन भी एक नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन आता है. ओके, Okay, so last one is amensalism. This is opposite of commensalism. Commensalism में हमने देखा था it was a positive and positive and zero interaction. Commensalism.
क्योंकि वन स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिटेड और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था. ओके, नाउ हियर this is amensalism. It means negative and zero interaction. One species is getting harmed, ठीक है, और inhibited, and दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा. Other one is neither benefited nor harmed. Example is Chlorella vulgaris. It produces a toxin which is harmful to other alga. ठीक है, so Chlorella vulgaris को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है which is harmful for other organisms, right? So negative and zero. Another one is, you know that larger and more powerful, ये तो बहुत ही common example है. Larger and more powerful organisms excludes another organism from its source, like shelter और food के लिए. This is also another kind of negative, negative and zero relationship. That is amensalism. Another one is algal blooms. You know that red tide or green blooms. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये on the surface of the water bodies collect हो जाते हैं, and thus they will disturb the whole aquatic bodies. कैसे disturb करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, फिर sunlight and oxygen will not be able to penetrate inside the water bodies, and thus other organisms are getting harmed, and this algal blooms is neither getting benefited nor harmed. These are the examples of amensalism. Okay, now this is the table which is showing what kind of interactions that we have seen till now. अब आपको relate करना easy रहेगा. Mutualism, positive interaction. तो आप देखिए question आपको इस तरह से बन के आ सकता है कि whether this is a positive interaction or negative interaction. तो आपको पता है कि positive interaction में बस दो ही है, एक तो mutualism होता है और एक होता है commensalism, जिसमें एक positive होता है और दूसरे को ना तो benefit हो रहा होता ना harm हो रहा होता. हमने example भी देखा है sucker fishes, remoras का, जो शार्क के साथ रहते हैं, राइट, लेफ्ट ओवर फूड पे फीड करते हैं, तो शार्क को कोई मतलब ही नहीं है, ना उसको बेनिफिट हो रहा है ना उसको हार्म हो रहा है. नेगेटिव इंट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, आप इसको याद कर सकते हैं पीपीए बना के, काइंड ऑफ निमोनिक्स दैट यू कैन मेक. पीपीए प्रेडेशन वैसे तो समझ में आ ही गया है, तो यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. पीपीए प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड अमेंसालिज्म. ओके, I hope you understood what is food chain, what are the different types of food chain, the food web, and the different aspects of biotech interactions. So if you have any doubt, please write in the comment section. I will try to answer that. And please stay tuned with me, the Trailblazing team, and do not forget to like, subscribe, and share.